एक बार मैरिको को देखते हैं। मैरिको करीब 1% नीचे है, लेकिन जो नंबर्स आए हैं वो देख लेते हैं। इसमें एबिटा मार्जिन में ड्रॉप देखने को मिला है। मुनाफा हालांकि ठीक है, इन लाइन विद एक्सपेक्टेशन है। 192 करोड़ के आसपास मुनाफा देखने को मिला है और उम्मीद भी यही थी कि 190 करोड़ के आसपास मुनाफा देखने को मिल सकता है। लेकिन जो कंपनी की आय है वो थोड़ी उम्मीद से कम आई है। 1420 करोड़ कंपनी की टॉप लाइन रही है, जबकि उम्मीद थी 1470 करोड़ के आसपास रहने की। और जो मार्जिन है कंपनी का वो 272 करोड़ 40 लाख के आसपास रहा है। तो काउंटर ने अभी अभी एक लो हिट किया था, उसके बाद हल्की सी रिकवरी वहाँ से। इस बीच एससीसी के भी नंबर्स आए हैं, वो भी एक बार आप देख लीजिए। 23 करोड़ से मुनाफा सीधा 4 करोड़ हो गया। मार्जिन भी 21% के आसपास थे, वो घटकर 17% है। ये जो आप सडन फॉल देख पा रहे हैं, ये नंबर्स के बाद का ही फॉल है और एकदम से तेज गिरावट इसके अंदर आती हुई दिखी है। दोनों का एक बार टेक्निकल चार्ट देखिए आप विवेक। एससीसी ये करीब 5% नीचे आया है, नंबर्स आए हैं इसके, और दूसरा मैरिको, इसके भी नंबर्स आए हैं। अगर मैरिको की बात करें तो मैरिको ब्रॉडली 253 से लेकर 263 की रेंज में ट्रेड कर रहा है। मुझे लगता है इसमें लेवल वाइज चलना चाहिए। अगर नीचे में 253 का लेवल ब्रेक करता है तो बेरिशनेस आ सकती है और 247 तक के लेवल देखे जा सकते हैं। अदरवाइज अगर ऊपर में 263 का लेवल क्रॉस करता है तो मुझे लगता है ये काफ़ी बुलिश हो जाएगा और 275 तक के इसमें लेवल देखे जा सकते हैं। ठीक है। इस बीच क्योंकि आप बजट पे हमने लगातार कई मानकों से हमने समझा कि बजट कैसा होना चाहिए, इसी मुद्दे पर बातचीत की हमने एक्सिस बैंक की एमडी और सीईओ शिखा शर्मा से। उनके मुताबिक बजट में सस्ते मकानों के लिए रियायत में रियल एस्टेट सेक्टर को एक बड़ा फायदा होगा। ये सुन लेते हैं उन्होंने क्या कहा। So, if we go back to one of the themes that the PM announced soon after he took over, one of his dreams was housing for all. And I think that's a laudable objective. But we have seen some progress towards it. But I think in this budget, there are many things that have been put together which help that. One is the incentive for affordable housing loans. Two is treating developer funding on affordable housing as infrastructure, so that there will be some incentive to lending to that. And the three is the tax breaks for the lowest slab levels, right? So it's putting a bit more money in the hands of consumers to be able to buy that house, to be able to pay your loan for that house. It's giving incentives for affordable housing, and it is helping builders as well. And on top of that, they've changed the definition of affordable house to be more realistic by saying carpet area of 60 square meters. So I think a lot of things which were required to get affordable housing going has been a big focus of the budget. इस बजट में मुझे तीन चीज़ें दिखाई दी which focus on that particular issue. One is affordable housing, to go back to that, because housing is a very employment intensive sector. So, and especially small affordable houses are even more employment intensive than large multi-story buildings, right? The second thing which is very employment intensive is tourism. So if we look at countries which have large populations, tourism is a way to create jobs through the tourist inflow. And the tourist inflow that comes into India is completely disproportionate with the quality of assets that we have and the size and diversity of our country. So a focus on attracting tourists can make a material difference to the economic well-being of our people. And to get that right, you can have a brand, but also you need to focus on infrastructure, you need to focus on law and order, you need to focus on cleanliness, and the government is focusing on all of that, plus has a focus on tourism. So to me, that is actually one of the less talked about, but probably a big game-changing announcement that the government made around tourism. And I think in 5 to 10 years, that can make a material difference to job creation and livelihoods for people. तो ये थी शिखा शर्मा और बजट अनाउंसमेंट्स पर अपना व्यू शेयर कर रही थी। अब हमारे साथ और एक ख़ास मेहमान जुड़े हैं। हमारे साथ श्री केसी चक्रवर्ती इस समय जुड़े हैं सीधे लंदन से। सर, शुक्रिया हमारे साथ इस बातचीत में शामिल होने के लिए। थैंक्स फॉर जॉइनिंग अस। मैं बजट से ही शुरुआत करता हूँ। आपने बजट देखा होगा और जिस तरह के अनाउंसमेंट्स हुई हैं इसमें कुछ रेवोल्यूशनरी कदम भी है, जैसे 3 लाख के ऊपर आप कैश में ट्रांजैक्ट नहीं कर पाएंगे, इनकम टैक्स में रिलीफ दी गई है। आपको कैसा लगा ये बजट? देखिए, बजट तो अच्छा है, इंटेंट वाइज, कंटेंट वाइज, कमेंट्स वाइज बजट अच्छा है।
मगर कितना इम्प्लीमेंट होगा और उसका रिजल्ट क्या आएगा उस पर यह डिपेंड करता है। माने अनाउंसमेंट अच्छा है, बजट में कोई कमी नहीं है, ये पॉपुलिस्ट भी नहीं है, ऐसा कोई रिफॉर्म भी नहीं है, तो बजट तो इंक्रीमेंटल है, हमें तो ठीक ही लगा, मगर कोई ऐसा एक्स्ट्राऑर्डिनरी बजट भी नहीं है। इसकी इम्प्लीमेंटेशन जो है सबसे अधिक जो है महत्वपूर्ण है कि अगर इम्प्लीमेंट कर पाए तो ठीक है, नहीं कर पाएंगे तो क्या होगा पता नहीं। मिस्टर चक्रवर्ती, लेकिन इस बजट में आपको 2-3 चीजें ऐसी कौन सी लगी जो आपको लगता है कि हाँ आगे चल के बहुत इंपॉर्टेंट होगी? अगर आपकी ही बात को मैं आगे बढ़ाऊं कि सरकार इस पे गंभीरता से काम कर ले तो वो क्या हाउसिंग है, वो क्या रूरल डेवलपमेंट है जिसकी बात बजट में की गई, या फिर वो ऐसी डेवलपमेंट है जो इंफ्रा से कहीं ना कहीं जुड़ी हुई थी? देखिए, इंफ्रा के एरिया में अगर सही काम है और गवर्नेंस के एरिया में अगर सही काम है, क्योंकि हाउसिंग सेक्टर में हमें लगता नहीं है कि बहुत बड़ा कुछ गवर्नमेंट कर सकती है। ये तो अल्टीमेटली हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है, रियल एस्टेट डेवलपर है, ये कुछ कर पाएंगे, मगर उसमें अलग तरीके के रिफॉर्म की जरूरत है। जैसे अभी भी हम जो है रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी का क्या पोजीशन है, उनका इम्प्लीमेंट वो जरूरत है। मगर अगर इंफ्रास्ट्रक्चर और गवर्नेंस को इम्प्रूव किया जाएगा तो हमारे ख्याल से ये जो है बहुत दूरगामी प्रभाव रखेगा। जैसे 3 लाख के ऊपर कैश का, उसका अगर सही तरीके से इम्प्लीमेंट कर लिया जाए तो इसका इफेक्ट तो आएगा ही। बिल्कुल। मिस्टर चक्रवर्ती, एक चीज़ जिसे लेकर बजट पूरी तरह से खामोश था वो था डिमोनेटाइजेशन के बाद जितना पैसा बैंक्स में आया है। वी अंडरस्टैंड कि अब वो अफोर्डेबल हाउसिंग में पहले के मुकाबले ज़्यादा लेंडिंग हो पाएगी, इंफ्रास्ट्रक्चर का स्टेटस मिल गया है वगैरह वगैरह, लेकिन यू नो समवेयर देयर वाज एक्सपेक्टेशन कि उस पर कुछ कहा जाएगा। अगर पूरे आंकड़े नहीं दिए गए तो भी देयर विल बी सम इंडिकेशन। वैसा कुछ सुनने में नहीं मिला है ऑन डिमोनेटाइजेशन फ्रंट एंड इट्स इफेक्ट ऑन द बैंकिंग सिस्टम। क्या ये बजट खामोश रहा क्या? हाँ, खामोश ही रहा। देखिए, इसमें क्या है, उन्होंने बताया कि बैंकों का डिपॉजिट बढ़ा है, मगर इसमें क्या है, कितना पैसा वापस आया वो तो अभी भी फिगर नहीं दे रहे हैं। हमारा ख्याल है कि अभी उतना पैसा वापस नहीं आया, तो मैंने इतना ही हम मान सकते हैं, मगर उस पर क्या बताएंगे। तो डिमोनेटाइजेशन का जो इम्पैक्ट भी होगा वो हमारे पीरियड ऑफ टाइम आएगा, और अभी भी जो है सभी इसको जो है इसका पूरा इम्पैक्ट कितना होगा इस साल, अगले साल, इसको फिर भी अंदाज लगा रहे हैं, क्योंकि ये तो पहले कभी ऐसा इतना बड़ा स्टेप नहीं लिया गया। तो गवर्नमेंट इसलिए इस बारे में चुप्पी साधा है, और इस पर फिगर तो रिजर्व बैंक को देना है। रिजर्व बैंक को फिगर दिया नहीं है अभी तक। हाँ, एक बात बिल्कुल। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपसे जानना चाहता था, क्योंकि आप बैंकिंग वेटरनर भी रहे हैं, आपको ये बात अच्छी होगा, समझ में भी आ रहा होगा, क्योंकि FIB सरकार ने ख़त्म किया है, एक अच्छी गवर्नेंस के तौर पर बढ़ा है। दूसरा, सरकार विनिवेश के लक्ष्य के साथ वापस उतरी है, ये करीब 75,000 करोड़ का विनिवेश है, और कल सुन के बहुत अच्छा लगा कि IRCTC भी लिस्ट होने के लिए आ रहा है मार्केट के अंदर। सरकार इस तरीके से गवर्नेंस को ठीक करके उनकी क्षमता बढ़ा रही है सरकारी कंपनीज की। ये तो इकोनॉमिक के लिए अच्छा है ना, कि बजाय सिंगल पार्टी रेगुलेशन होने की बजाय आप उसको बाजार के अधीन कर दें, जहाँ पे थोड़ा कंपटीशन है वो मिलेगा उनको और बेहतर काम होगा। ये जरूर, ये बहुत अच्छा स्टेप है। देखिए, मैं तो ये सोचता हूँ कि हमारा कंट्री जो है कैपिटल डेफिशिएंट कंट्री है, तो हम तो ये चाहते हैं कि हमारा पार्लियामेंट पास करे इस कंट्री में कैपिटल इन्वेस्टमेंट जो है, बाहर से FDI आने की कोई रोक नहीं होना चाहिए, एक्सेप्ट सम नेगेटिव सेक्टर फ्री होना चाहिए, क्योंकि वी रिक्वायर मनी, और उसमें रोक क्यों है। तो ये बहुत अच्छा स्टेप है, मगर हमको ये और आगे ले जाने का है कि इस पर कोई रोक तक नहीं होना चाहिए, एक्सेप्ट नेगेटिव सेक्टर, द FDI इन्वेस्टमेंट शुड बी फ्री इन आवर कंट्री। मिस्टर चक्रवर्ती, साथ ही ये बात आपकी सही है कि इंटेंट अच्छा है, इम्प्लीमेंटेशन पर नज़र रखनी होगी। अब इसमें दूसरा जो फाइन प्रिंट है ना बजट की, उससे अगर आप देखें, एक तो टैक्समैन जो है उनके पावर्स सर्च एंड सीजर के काफ़ी बढ़े हैं। दूसरा, कल खुद मिस्टर जेटली ने भी कहा अपनी स्पीच में कि जो इकोनॉमिक फ्रॉड करते हैं, चोरी करते हैं टैक्स वगैरह की, उनको बख्शा नहीं जाएगा। सो ऑब्वियसली वी आर लुकिंग एट मच मोर पुलिसिंग देन व्हाट वाज हैपनिंग। आपका इस पर व्यू क्या है, रिएक्शन क्या है? क्या इससे वाकई टैक्स की चोरी में या फिर ब्लैक इकोनॉमी को रोकने में या फिर टैक्स का बेस बढ़ाने में कितनी सहायता मिलती है? आपका तजुर्बा क्या कहता है? देखिए, जहाँ तक मैं सोचता हूँ कि
टैक्स की चोरी रोकने के लिए, जो लोग गलत काम कर रहे हैं उनको रोकने के लिए कोई लॉ की कमी नहीं है, पावर की कमी नहीं है। कमी है अपनी इरादा की, मंशा और हमारी मशीनरी की। जब तक हम मशीनरी को चुस्त नहीं बनाएंगे नहीं हो पाएगा। और लीगल सिस्टम को काफी इफेक्टिव बनाना होगा कि ऐसे केस जो भी आएगा वो बहुत जल्दी से सेटल हो जाए। तो बिना इसके इसको हम कर नहीं पाएंगे। यार इसके लिए जरूरी क्या है, हमको कुछ बड़े बड़े केसों पर ध्यान देना है। अधिकतर आज जो हो रहा है, हम छोटे छोटे केसों को लोगों को तकलीफ में डालते हैं, मगर बड़े लोगों को हम जनरली लंबे समय के बाद छोड़ देते हैं। तो जिनके पास रिसोर्सेस है, जो लीगल सिस्टम को एक्सपर्ट कर सकते हैं, वो जो है उनको बहुत समय मिलता है और बाद में लोग उसको भूल जाते हैं। इसीलिए मेरे हिसाब से इसकी इम्प्लीमेंटेशन बहुत सख्त होना, बहुत टाइम से होना चाहिए, चुस्ती से होना चाहिए। और इसके लिए आपको मशीनरी को एफिशिएंट होना बहुत जरूरी है। ये लॉ की कमी नहीं है, पावर की कमी नहीं है। ठीक है मिस्टर चक्रवर्ती, ये जो 3 लाख रुपए की कैश विड्रॉल की जो सरकार लिमिट लगा रही है और उसके बाद पेनल्टी वाला इशू भी है, ये कितना ठीक है बैंकिंग के लिए? क्योंकि आप डिजिटल इकोनॉमी के लिए जो सरकार कदम उठा रही है, ऐसा लग रहा है कि नोटबंदी के बाद बिल्कुल सिलसिलेवार तरीके से काम हो रहा है। पहले आप ऑनलाइन या खाते खोलिए, उसके बाद लिमिट्स लगाइए, धीरे धीरे रिफॉर्म्स हो रहा है। कितना अच्छा है या कितना बुरा है बैंकिंग सिस्टम के लिए ऑल टुगेदर? देखिए, कोई भी सिविलाइज सोसाइटी में हम कैसे पैसा खर्चा करते हैं इस पर कोई रोक होना नहीं चाहिए। तो जो आप देखिए डेवलप सोसाइटी है, इसमें लोग अपने से कैश में ट्रांजेक्शन नहीं करते। तो क्या यह है हमारे कंट्री में, अगर इसको फोर्सफुली करना है ये अच्छा चीज है, मगर इसका इम्प्लीमेंटेशन जरूरी है। और मैं बताता हूँ कि कैश की जो है ट्रांजेक्शन रोकने के लिए, ब्लैक मनी रोकने के लिए 3 लाख एक बहुत बड़ा लिमिट है। वो तो बहुत कम ट्रांजेक्शन में हो सकेगा। 50,000 के ऊपर कैश ट्रांजेक्शन आप रिपोर्ट कीजिए, और आप जो है 50,000 के सब अधिक 20,000 से अधिक ट्रांजेक्शन को जो है पैन कार्ड नोट कीजिए। कि आप कैश में जो है 10 लाख में रोक लगने से क्या होगा? अगर उसका रिपोर्टिंग सही है तो भी गवर्नमेंट उसको ट्रैक कर पाएगा। रोक जो है कोई डेमोक्रेटिक सोसाइटी में गवर्नमेंट के तरफ से होना नहीं चाहिए। लोग कैसे पेमेंट करें ये उनकी अपनी इच्छा है, आप उसको ट्रैक करने की सिस्टम बनाइए। फिर भी मैं बताऊंगा, अगर इससे गवर्नमेंट को लगता है कि जो है काले धन में जो ट्रांजैक्शन होता है ये कम हो सकता है तो ये करे, मगर जनरली कोई सोसाइटी में ऐसे इस चीज को रोका नहीं जा सकता है।